Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Almighty Allah, the Compassionate, the Merciful. I welcome you all to the online class of Programming Fundamentals. This is actually the fifth class of Programming Fundamentals. Before starting our new lecture, let's have a quick recap of our last lecture. In the last lecture, we discussed that what is an operator. We also discussed its types. The first type that we discussed was the arithmetic operator, that is used for arithmetic expressions, addition, subtraction, multiplication, division, and the modulus, the remainder operation. In the second type, we discussed the relational operator, that is used to represent the relational expression and a relational expression and expression whose answer may either be true or false, greater or equal to, greater than, less or equal to, equal to, for used for comparison, and not equal to. These were the 6 cases for relational expression. I hope आपको समझ आ गई होगी, but still if you have questions, you can ask your queries in the comment section using my phone number, using WhatsApp, or using email. Now, in this operators, if we discuss the types, we discussed already the 2. I'm moving towards the third one. The third type of operator is logical operators. Logical operators basically used to combine 2 or more relational operators. The basic use of logical operators is what basically to combine 2 or more relational operators. For that reason we use logical operator. For example, if we have a variable a which value is 10, second value is 15, c values is 20, and another variable d that's equals to 25. Now I have basically three types of logical operators: the logical AND, used by double ampersand. The logical OR, basically the virtual bar. Normally it is with the backward slash, and if we press that key with shift, we will get a virtual bar that we used for OR operator. And the third is the NOT symbol, logical NOT. Like in these examples, if I ask you a question, simple, if I ask simple question that A is less than B, so the answer is true. But I want also to check that this A is less than A, and if I want to check that whether this A is less than C as well, so then I have to use A is less than C. So I am using 2 different relational operators. I can use this with a single expression, and that would be like this, that if I write A is less than B and A is less than C. So basically we have 2 conditions that are connected with a logical AND, and the use of logical AND basically tells the compiler if we use logical AND, logical OR, and NOT. There are different applications of these 3 symbols. Like this, in this example, if the left part of this logical AND
asks the compiler to check whether the value of a is less than b. A is 10 and b is 15. That means 10 is less than 15. Yes, the answer is true. The logical AND part on the right section of the logical AND asks the compiler to check the value of a, that is 10, is less than the value of c, that is 20. So 10 is less than 20. That means the right part is also true. So logical AND returns true if all of its parts becomes true. Means इसका लेफ्ट भी ट्रू हो, राइट भी ट्रू हो, तब जाके आपके पास लॉजिकल एंड क्या रिट्रीव करेगा, क्या रिटर्न करेगा, ट्रू आंसर रिटर्न करेगा. I hope you could understand the example. If I simply change this with the, now in this case the left side is the same, that means it's true. Now look at here, the value of a, that is 10, is greater than the value of c, that is 20. So 10 is greater than 20? No. So the answer is false. If one of the section of the logical AND is false, the overall answer will be considered as false. जब उसका लेफ्ट ट्रू हो, राइट ट्रू हो, तब आपको वो ट्रू रिटर्न करेगा. और अगर उनमें से एक भी आपके पास फॉल्स हुआ मतलब तो आपके पास ऑटोमेटिकली लॉजिकल एंड भी क्या हो जाएगा, फॉल्स. जस्ट लाइक रिलेशनल ऑपरेटर हुज आंसर may either be true or false, same in the case of logical operator, it returns the answer in the form of true or false. So logical AND में आपके सारे लेफ्ट और राइट दोनों को ट्रू होना चाहिए कि ओवरऑल आंसर आपका ट्रू आए. ये तब आपके पास ट्रू होगा जब आपका लेफ्ट और राइट दोनों क्या हो, ट्रू हो, तो आपके पास ये रिटर्न करेगा ट्रू को. आई होप आपको समझ आ गई होगी. अच्छा, ये तो थी बात लॉजिकल एंड की. अब बात करते हैं लॉजिकल आर की. अब लॉजिकल आर में चेक करें. अब लॉजिकल आर में ये आपके पास लेफ्ट साइड है. लेफ्ट साइड पे a is less than b, 10 is less than 50. The answer that it returns is true. Or this is basically the virtual bar is used for logical or. Yeah, a is less than c, that means 10 is less than 20. So the answer is true. Logical OR will return it is true now. This. If we take it in the second case, that means if I change this, so what will happen? The left section remains the same, that is true, and look at the right section. In the right section we have a condition a is greater than c, that means 10 is greater than 20, which is false. If it is false, what will be the overall answer of the logical OR? It will again remains the same. The logical OR will be true. या इस कंडीशन को इंटरप्रेट कैसे करते हैं कि a या a b से कम हो या a b से a c से ग्रेटर हो. a c से ग्रेटर तो नहीं है, लेकिन a b से लेस जरूर है. तो अगर इस केस में लॉजिकल आर में आपके पास एक भी ट्रू आया तो ओवरऑल आंसर आपका ट्रू होगा. इसके बरक्स लॉजिकल एंड में अगर एक भी फॉल्स आया तो लॉजिकल एंड ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा. ये इसका एक सिनारियो है. अच्छा, अब इसका एक और केस देखते हैं. इन दिस केस I am asking the compiler to check the values of a and b, where a is greater than b, 10 is greater than 15. No, the answer is false. Or a is greater than c, 10 is greater than 20. No, both the left hand side and the right hand side
of the logical OR is false. So what will be the overall answer? The overall answer will be false. Keep in mind, in the logical AND, if any of the condition is false, the overall answer of logical AND will be false. In logical OR, all the sections, all the condition must be false for OR to become an overall false. आपका सारे कंडीशंस फॉल्स होने चाहिए कि आपका लॉजिकल आर ऑपरेटर फॉल्स हो जाए. जिस तरह इस केस में आपके पास लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी दोनों फॉल्स हैं, तो आपके पास लॉजिकल आर फॉल्स रिटर्न कर रहा है. और लॉजिकल नॉट इनइक्वालिटी के लिए यूज होता है कि आप इसमें से इस तरह करें कि a इज ग्रेटर देन b. फॉर एग्जाम्पल a इज ग्रेटर देन b, ये कंडीशन इक्वल नहीं है a इज ग्रेटर देन c के, तो उन दोनों में कंपैरिजन के लिए तो a इज ग्रेटर देन b क्या है, 10 इज ग्रेटर देन b 15. सो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, दोनों की इक्वालिटी तो ये नहीं. अगर इसमें हम ये एक करें, इसको हम लेस करें तो ये ट्रू हो जाएगा. a इज ग्रेटर देन b, दैट मीन्स इट इज ट्रू. नॉट लॉजिकल नॉट, ये इसके इक्वल नहीं है, तो आपकी बात सही कंसिडर की जाएगी. तो ये तो थी बात आपके थर्ड टाइप की, जिसमें हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स को डिस्कस कर लिया है. स्टिल क्वेश्चंस आस्क इन द Google Classroom or using my number through WhatsApp. Now, the fourth type, that is unary operators. This is actually the fourth type of operators used in C language. It is basically used to increment or decrement the value of a variable by 1. किसी वेरिएबल की वैल्यू को या एक इंक्रीज करने के लिए या एक डिक्रीज करने के लिए जो ऑपरेटर हम सी लैंग्वेज में यूज करते हैं या बाकी लैंग्वेजेस में भी यूज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द यूनरी ऑपरेटर. से फॉर एग्जांपल आई हैव अ वेरिएबल a is equal to 10 and I want to increment the value of this variable. a is equal to plus a. सो अब यहाँ पे मैं इसका आउटपुट चेक करता हूँ. प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ a is %d, a. कंपाइलर विल डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ दिस a. इसकी वैल्यू को इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की लोकेशन पे प्रिंट करेगा. नाउ इन दिस स्टेटमेंट द वैल्यू ऑफ a is 10. a is equal to plus a, so it will increase the value, that means 10 plus 1 and display क्या करेगा, a करेगा. try to understand, यहाँ पे एक लॉजिक यूज होती है जो बहुत जरूरी है आपको समझने के लिए. आप इसको प्लस a भी लिख सकते हैं और हमारे पास एक और तरीका भी है a++. ये जो मैंने डबल स्लैश लिखा, बेसिकली दिस इज कमेंट. ये आपके पास क्या है, कंपाइलर इसको कन्वर्ट नहीं करेगा, इसको कंपाइलर एज इट इज छोड़ देगा. दिस इज फॉर यूजर इंफॉर्मेशन. ये कमेंट सेक्शन है, कमेंट के अगेंस्ट द ग्रामर चेक नहीं किया जाता, उस पर एरर नहीं जाता. यहाँ पे मैंने इसलिए ये लिखा कि आपको समझ आए कि हम एक तो a+++ लिख सकते हैं और दूसरा हम a++ लिख सकते हैं. इसको हम प्रीफिक्स कहते हैं. दिस इज बेसिकली अ प्रीफिक्स. कौन सा प्रीफिक्स है, ये. और ये जो आपके पास है इसको हम पोस्टफिक्स कहते हैं. प्रीफिक्स यूनरी ऑपरेटर एंड पोस्टफिक्स यूनरी ऑपरेटर, ये दो किस्म के तरीकों से यूज होता है यूनरी ऑपरेटर.
अगर आपके पास एक सिंगल वेरिएबल है तो ये इफेक्ट नहीं करता कि आप उसको प्रीफिक्स लिखें या पोस्टफिक्स लिखें, बट इफ यू आर यूजिंग एन एक्सप्रेशन देन इट इफेक्ट्स द वैल्यू, फिर आपकी वैल्यू में इसका इफेक्ट पड़ता है। तो इसका ज़रा और क्या करें, इस पे ज़रा इसकी ज़रूरत होती है। अच्छा, जिस तरह आपके पास प्लस प्लस में है, ये आपको 11 डिस्प्ले करेगा। द वैल्यू ऑफ ए इज़ 11, क्योंकि 10 के साथ वो 1 ऐड हो जाएगी। Same is the condition of the second, that is the minus minus a, and we can simply write a minus minus. So a की वैल्यू पर क्या डिस्प्ले होगी? The value of a, यहाँ पे value of a is 9 डिस्प्ले होगी in this case. So unary operator used to increment or decrement the value of a variable by 1. Let me give you simple example. यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज़ होता है। अगर आपके पास सिंपल एक वेरिएबल है तो आप प्रीफिक्स यूज़ करें, पोस्टफिक्स यूज़ करें, आपके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। बट इफ़ यू आर यूजिंग एन एक्सप्रेशन, से फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन क्या है, लाइक b इज इक्वल टू प्लस प्लस ए। अब यहाँ पे b इज इक्वल टू ए प्लस प्लस, यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत होती है कि यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करें। यहाँ पे आपके पास एक एक्सप्रेशन है जिसमें आपने प्रीफिक्स यूनरी यूज़ किया, और इस दूसरा एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल इसको मैं सी करता हूँ आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक दूसरा वेरिएबल है जिसपे मैंने ए प्लस प्लस असाइन किया। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट पे इफेक्ट आएगा, रिजल्ट डिफरेंट होगा। एंड मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल एग्जांपल इसके लिए बहुत ज़रूरी है और ज़्यादा सूटेबल होगा। So starting with the program, this is a simple program. Already the structure is given. For example, I have used so एग्जाम्पल की तरफ थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, int a variable a is equal to 10, b is equal to 10, c is equal to 0, and d is equal to 0. I have declared 4 variables. One is a, second one is b, third one is c, and the fourth one is d. A and b is initialized with the value of 10, and C and D is initialized with the value of 0. So now I'm using a unary operator. For example, I want to assign this b is equal to, and I have written plus plus a, and I want to assign a to the c variable. In the second example, I'll assign plus plus b. Now look at both examples. The value of a and b is same, and the syntax is also same. I used prefix. In the second case, I'll use the postfix. I'll use the postfix operator. a और b दोनों की वैल्यू आपके पास 10 है। a and b वैल्यूज आर 10, और c और d को मैंने 10 ही साइन किया, लेकिन 10 के साथ इंक्रीमेंट लगाया हुआ है। मतलब a 10 है तो प्लस प्लस a 11 c को असाइन किया, और b प्लस प्लस जो आपके पास। अब हम इन दोनों की वैल्यू को ज़रा चेक करते हैं। प्रिंट एफ यूजिंग एन आउटपुट स्टेटमेंट, और इसमें लिखते हैं, अच्छा, वैल्यू ऑफ c इज %d। यहाँ पे एक स्केप सीक्वेंस यूज़ करता हूँ, इसका अपना एक फ़ायदा है, फिर बाद में बताऊँगा। अच्छा, ये यहाँ पे इसको हम स्केप सीक्वेंस कहते हैं। \n आपके लिए कर्सर को जब यहाँ पे ये वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा, इस यहाँ पे वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा, तो फिर कर्सर को नेक्स्ट लाइन यहाँ पे लेके आएगा।
एग्जाम्पल में आप देख लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं, सी में हमने प्लस प्लस ए असाइन किया हुआ है। अब दूसरा हम क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं, दूसरा हम प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ डी इज वही सेम परसेंट डी डबल कोट्स, और इसे यहाँ पे हम डी डिस्प्ले करना चाहते हैं। एंड ईच लाइन मस्ट बी टर्मिनेटेड विद अ सेमीकोलन। Now first I'll compile this program, so there is luckily no error. Then I'll run it. So look at here, value of C is 11 and value of D is 10. यहाँ पे हुआ क्या, अब जरा दोनों की वो भी देख लें, A और B की क्या वैल्यू है उस स्टेटमेंट के बाद। या चलो C और D से पहले हम A और B की वैल्यू को डिस्प्ले करते हैं। print f value of A is %d and B is %d and \n के वो नेक्स्ट लाइन में लेके आए, जो C और D की वैल्यू हो उसके बाद डिस्प्ले हो। पहले यहाँ पे हमने A को मेंशन किया है, तो A का फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो मतलब पहले A आप लिखेंगे, फिर उसके बाद B और फिर सेमीकोलन। अब यहाँ पे कंसिडर करें तो ये आपके पास इसका कोड लाइन हो गया। फर्स्ट आई विल कंपाइल दिस, सो लकली अगेन नो एरर, देन आई विल रन दिस। Look at this, the value of A is 11 and B is 11, but the value of C is 11 but the value of D is 10. So keep in mind यहाँ पे गेम क्या खेली गई, इस पे ज़रा समझने की कोशिश करें। मैंने इसको सेव एज करना था, चलो यूनरी के नाम पे। अब मैं इसका कोड खोलता हूँ। सो होपफुली मुझे उसका कोड मिल जाएगा। दिस विल बी इन द डिस्क, द टर्बो C3, द बिन में हमारे पास यूनरी होगा। तो यूनरी का .cpp जो इसका सोर्स कोड है, हम इसको नोटपैड के साथ खोल लेंगे और आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग करा देंगे। थोड़ा सा इसकी साइज को कम कर देते हैं, मैं इसके साइज को थोड़ा सा कम कर दूं, 28 कर देता हूं। अच्छा, सो दिस वाज बेसिकली द प्रोग्राम। ये हमारा प्रोग्राम था। इसमें है क्या बेसिकली, आप ज़रा कंसंट्रेशन के साथ इस चीज़ को देख लें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कंपाइलर आया, 4 वेरिएबल लिए। फर्स्ट इट इनिशियलाइज्ड द वैल्यू 10 to A. In the second variable it initialized the again value 10 to another variable called B. In C में हमारे पास 0 आया, और in D it is also 0. इस लाइन के बाद ये एक्शन परफॉर्म हुआ। नाउ इन नेक्स्ट लाइन, व्हाट विल इन दिस नेक्स्ट लाइन, इन दिस लाइन व्हाट हैपेंड, बेसिकली कंपाइलर इंक्रीमेंटेड द वैल्यू ऑफ A विद द प्लस। तो यहाँ पे होता क्या है, कंपाइलर ने आया, यहाँ पे पहले यूनरी ऑपरेटर यूज हुआ है, पहले उन्होंने A को इंक्रीज किया, मीन्स प्रीफिक्स में पहले उसने इसको इंक्रीज किया। सो ये 10 के बजाय क्या बनी, इट बिकम्स 11। यहाँ पे वैल्यू 11 बनी, और यही 11 असाइन हुई आपके दूसरे वेरिएबल कॉल्ड C। यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया गया 11। अच्छा जी, अब क्या हुआ, इसमें हमारे पास इस लाइन में बेसिकली क्या हुआ, D को B++ असाइन हुआ। पहले यहाँ पे होता ये है कि B में अभी क्या वैल्यू पड़ी है, क्योंकि ये पोस्ट फिक्स है, पहले वो B को D में असाइन करेगा। तो B ने यहाँ पे क्या असाइन किया, यहाँ पे उसने 10 असाइन करके, फिर उसके बाद जब ये इसको असाइन हुआ, फिर उसके बाद कंपाइलर ने क्या किया, कंपाइलर ने इस B में एडिशन की, तो B की वैल्यू इस असाइनिंग के बाद क्या बनी,
b की वैल्यू इस असाइनिंग के बाद बनी 11। ये इसका इस लाइन में हुआ। अब बात रही इस लाइन की। इस लाइन में क्या, आप जरा कंसिडर करें, यहां पे a की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। a इज, अब a की वैल्यू क्या है 11, a को 11 डिस्प्ले करेगा और b को, b की वैल्यू क्या है, b भी 11 है, तो b को इन्होंने 11 डिस्प्ले किया। अब इस सिनेरियो के बाद जो आपके पास c की वैल्यू है, c में क्या आया हुआ है, c में बेसिकली आपके पास 11 है और d में क्या है, एक्चुअली 10 स्टोर है। तो आपको इसलिए स्क्रीन में क्या नजर आ रहा था कि ये असल में प्रीफिक्स पोस्टफिक्स की वजह से, पोस्टफिक्स में पहले वेरिएबल असाइन होगा, उसके बाद उस वेरिएबल में इंक्रीज आएगा। सिर्फ ये लॉजिक आप लोगों को समझानी थी। आप इस सिनेरियो में जरा चेक कर लें। अच्छा जी, इस सिनेरियो में जरा चेक कर लें, कंट्रोल F9 से क्या आता है आपको। Value of A is 11, B is 11, value of C is 11, but the value of D is 10. So keep in mind it affects the results. It affects basically the results. इसको हम सेव कर लेते हैं। आपका रिजल्ट इफेक्ट होता है प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में अगर वो किसी एक्सप्रेशन में है। यहाँ पे ये एक एक्सप्रेशन है कंप्लीट, तो यहाँ पे आप लोगों ने गौर करना है, जब एक वेरिएबल हो सिंपल तो अगर आप a प्लस प्लस लिखो या प्लस प्लस a लिखो कोई इफेक्ट नहीं होता, बट इफ यू राइट इन अ स्टेटमेंट और इन एक्सप्रेशन देन इट इफेक्ट्स द रिजल्ट, फिर उससे आपके पास रिजल्ट में इफेक्ट आता है। सो दिस वाज द फोर्थ टाइप ऑफ what we call the types of operator. अच्छा, ये still if you have questions you can ask in the Google Classroom. एक और टाइप मैं इसको कह नहीं सकता लेकिन यूज होती है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। जब आप किसी वेरिएबल में, फॉर एग्जांपल आई हैव अ वेरिएबल a इज इक्वल टू 10 और आप उसमें से 5 का इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप एक तो ये है कि आप 5 टाइम्स ये लिखेंगे, लेकिन इट्स अ टायरसम टास्क। आप इसमें सेल्फ इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, तो हमारे पास दो टेक्निक्स है, a इज इक्वल टू a प्लस 5। तो यहां पे क्या होता है, कंपाइलर एक वेरिएबल a को इनिशियलाइज किया, उसमें वैल्यू उसने 10 स्टोर कर दी, वो 10 वहां पे मेमोरी में स्टोर हो गई। अब दूसरी लाइन में चेक करें, a की करंट वैल्यू क्या है 10 में 5 ऐड करो और उस वैल्यू को इस a को असाइन करो। 10 में 5 ऐड करो प्लस 5, सो 10 प्लस 5 बिकम्स 15। तो ये ओवरराइट होके क्या बनेगा, दिस विल बी बेसिकली यहां पे ये इट विल बिकम 15, ये आपके पास 15 बन जाएगा। अब इससे बचने के लिए हमारे पास इन्होंने कंपाउंड असाइनमेंट का ऑपरेटर वो दिया, जिसमें आप इसी स्टेटमेंट को इस तरह लिख सकते हैं, मैं इसको a प्लस इक्वल टू 5। अब इन दोनों लाइंस का एक ही मतलब है, a प्लस इक्वल टू 5 मीन्स a की करंट वैल्यू में 5 इंक्रीमेंट करो और a को असाइन कर दो। सो दिस विल बी अ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। जिस तरह आपके पास कंपाउंड असाइनमेंट में आपके पास इसकी टाइप्स में प्लस इक्वल टू है, मैं यहाँ पे इस तरह कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दिया, हाँ ये इसकी पहली टाइप हो, बल्कि इसको मैं इसी तरह रहने देता हूँ। माइनस इक्वल टू एक और बन जाएगा, सॉरी अगर आप स्टैरिक इक्वल टू इस चीज के साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ / डिवीजन इक्वल टू और मैन मॉड्यूलस इक्वल टू। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि आपके पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरह यूज होता है और क्यों यूज होता है। इसी के साथ आप लोगों का प्रोग्रामिंग का बेसिक्स जो नॉलेज होता है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वो खत्म हो गई। अब इंशाल्लाह इसके बाद जो क्लास होगी दैट विल बी अ प्योर प्रोग्रामिंग, एंड इन दैट सेक्शन वी विल डिस्कस डिसीजन स्ट्रक्चर्स।
आई होप कि आप पहले से थोड़ा सा उसको स्टडी कर ले। यहाँ तक आपका प्रोग्रामिंग बेसिक टर्मिनोलॉजीज ख़त्म हो जाती है। Inshallah, in the next class we will start basic pure programming techniques, and we will try to learn the programming skills. If you have any questions in these basic terminologies, you can ask in the Google Classroom or by using my WhatsApp number, and you can also send me email. I'm hopeful इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गई होगी। Till next class, it's goodbye. अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।